چونکہ غزل اور غزلات کی کتاب سلیمان بادشاہ کی اپنی تحریر کردہ ہے، سلیمان کا دور بحیثیت قوم بنی اسرائیل کے مکمل جوبن یا جوانی کا دور تھا۔ جب وہ مصر سے نکلے تو ان کی حالت نومولود بچے کی سی تھی۔ خدا کے ساتھ چلنے میں وہ ابھی بالکل شیرخوار تھے۔ ایمان، تربیت اور دنیاوی علوم و فنون اور بادشاہی جاہ و جلال میں ترقی پاتے پاتے وہ سلیمان کے دور تک بھرپور جوانی تک پہنچے۔ اس کتاب میں کون بنی اسرائیل کو شولمیت یعنی سلامتی کی فرزند اور عورتوں میں سب سے حسین و جمیل ایک جوان دوشیزہ کی تشبیہات میں پیش کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم غزل اور غزلات کی کتاب کے پہلے باب کے دوسرے پیغام کی طرف جا رہے ہیں۔ آیات 5 اور 6 میں یوں درج ہے، شولمیت کہتی ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں، میں سیاہ فام لیکن خوبصورت ہوں، کیدار کے خیموں اور سلیمان کے پردوں کی مانند۔ مجھے مت تاکو کہ میں سیاہ فام ہوں، کیونکہ میں دھوپ کی جلی ہوں۔ میری ماں کے بیٹے مجھ سے ناخوش تھے، انہوں نے مجھ سے پاکستانوں کی نگہبانی کرائی، لیکن میں نے اپنے پاکستان کی نگہبانی نہیں کی۔ تو یہاں پہلے ہم 6 آیت کا مطلب سمجھیں گے کہ یہاں جو کہا گیا میری ماں کے بیٹے مجھ سے ناخوش تھے، یہ ماں کے بیٹے کون تھے؟ پیدائش کی کتاب 20 باب کی 3 آیت میں یوں لکھا ہے، اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ سب زندوں کی یعنی تمام بنی نوع انسان کی۔ آدم سے جتنی بھی اولاد پیدا ہوئی ہے، اما ہوا ان سب کی ماں ہے، آج ہماری بھی۔ تو مطلب یہ کہ جو یہاں غزل کی کتاب کے پہلے باب کی 6 آیت میں اسرائیلی قوم کہہ رہی ہے میری ماں کے بیٹے مجھ سے ناخوش تھے، تو یہ شولمیت کی ماں کے بیٹے اسرائیل کے علاوہ پھر دیگر اقوام ہیں جو عبرانیوں سے کدورت رکھتے تھے۔ دوسری چیز کہ میرے ماں کے بیٹوں نے مجھ سے پاکستانوں کی نگہبانی کرائی، تو یہ پاکستان کیا ہے؟ یسایہ 5 باب میں اسرائیل کو خدا کا پاکستان کہا گیا ہے، تو پھر اسی طرح دیگر اقوام ان کے ملک اور سلطنتیں بھی اپنی اپنی جگہ پاکستان ہوئے۔ تو ابھی ہم سمجھیں گے کہ پاکستانوں کی یعنی دوسری اقوام کی نگہبانی، دوسری اقوام کی خدمتیں کس کس طرح اسرائیلیوں نے یا عبرانیوں نے کی ہیں۔ تو ہم شروع کریں گے جی بنی اسرائیل کے باپ ابراہام سے۔ تو ابراہام نے جیسا کہ پیدائش کی کتاب میں ان کا زندگی کے واقعات لکھے ہیں، انہوں نے خانہ بدوشی کی زندگی گزاری، خیموں میں رہے۔ جب سے وہ کسدیوں کے اور سے ہاران میں گئے تو وہ شہروں میں رہ رہے تھے، لیکن جب خدا نے کہا کہ تو کنعان کے ملک میں جا کے رہ، تو کنعان میں انہوں نے اپنی ساری زندگی خیموں میں گزاری۔ تو پیدائش 12 باب سے لے کر ان کی کہانی کے آخر تک بار بار ڈیروں لفظ آتا ہے، ڈیروں میں۔ تو ان ڈیرے یا ڈیروں سے کیا مطلب تھا؟ ان کی خیمہ گاہ، جہاں پر انہوں نے خیمے لگا رکھے ہوتے تھے، اپنے ریوڑ رکھے ہوتے تھے، تو اسی طرح ان کی زندگی خیموں میں گزر رہی تھی۔ تو پیدائش 18 باب میں پوری طرح لکھا ہے کہ وہ ممرے کے بلوتوں میں خیمے لگا کر رہ رہے تھے۔ تو ممرے ایک آدمی کا نام بھی تھا، اور اسی کے نام پہ حبرون کے شہر کا پرانا نام بھی ممرے تھا۔ تو اسی طرح ابراہام کے بعد اسحاق اور یعقوب کی زندگی کے واقعات میں بھی ڈیروں یا خیموں ہی کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ڈیروں میں یا خیموں میں رہتے تھے۔ پھر آگے آ گیا جی، چونکہ اسرائیلی قوم کے 12 قبیلوں کے باپ بزرگ یعقوب تھے، تو
याकूब अपनी जवानी में अपने ही मामू के घर में नौकर बनकर रहे 20-21 साल। तो पैदाइश 29 बाब से उनकी कहानी शुरू होती है, जब वो हारान में, आराम के मुल्क में, हारान के शहर में, जो उनके ही आबा अजदाद का शहर था, वहां पर अपने मामू के यहाँ आए उनकी बेटी का रिश्ता लेने। लेकिन उस रिश्ते के बदले में लाबन की खिदमत की हामी भर ली। तो साल हर साल उनकी नौकरी इख्तियार की। तो पैदाइश 38 बाब की 31 आयत में याकूब अपने मामू लाबन से गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे, मैं पूरे 20 बरस तेरे साथ रहा। तो 38 बाब की 40 से 41 आयत में उनके अल्फाज थे हजरत याकूब के, मेरा हाल ये रहा कि मैं दिन को गर्मी और रात को सर्दी में मरा, और मेरी आंखों से नींद दूर रहती थी। मैं 20 बरस तक तेरे घर में रहा। 14 बरस तक तो मैंने तेरी दोनों बेटियों की खातिर और 6 बरस तक तेरी भेड़ बकरियों की खातिर तेरी खिदमत की, और तूने 10 बार मेरी मजदूरी बदल डाली। तो ये 14 और 6 20 साल उन्होंने अपने मामू लाबन की नौकरी की। और यहां पर बिलखुसूस उन्होंने जिक्र किया कि मैं दिन को गर्मी और रात को सर्दी में मरा, यानी मुसीबत उठाई, तकलीफें उठाई धूप गर्मी में। तो चूरमी यही कह रही थी ना कि मैं धूप की जली हुई हूं। मेरे मां के बेटों ने मुझसे अपने पाकिस्तानों की रखवाली कराई है, निगहबानी कराई है। तो वो इसी तरफ इशारा था। इसी तरह होसिया नबी के सहीफे 12 बाब की 12 आयत में लिखा है, और याकूब आराम की जमीन को भाग गया, हाँ इसराइल बीवी की खातिर नौकर बना। यानी बाद में भी उसने बीवी की खातिर चौपानी की, बाद में भी नबूवत के साथ उस बात की तस्दीक की गई कि इसराइल का बाप नौकर बना था, वो दूसरों का नौकर बना और खिदमतें की और धूप में जला और सर्दियां बाहर रह रहकर बर्दाश्त की। तो बनी इसराइल के बाप की जिंदगी उसकी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी बनती है। इसके बाद जब उनकी नस्ल मिस्र में चली गई, तो अब हम देखेंगे कि मिस्रियों ने इस कौम के साथ या इस शुलमीत के साथ क्या मजालिम किए। खरूज पहले बाब की 11 से 14 आयत बताती हैं, इसलिए उन्होंने उन पर बेगार लेने वाले मुकर्रर किए, यानी मिस्रियों ने इसराइलियों पर बेगार लेने वाले मुकर्रर किए, जो उनसे सख्त काम ले लेकर उनको सताएं। सो उन्होंने फ़िरौन के लिए ज़ख़ीरे के शहर पितोम और रामसीस बनाए, पर उन्होंने जितना उनको सताया वो उतना ही ज़्यादा बढ़ते और फैलते गए। इसलिए वो लोग बनी इसराइल की तरफ से फिक्रमंद हो गए, और मिस्रियों ने बनी इसराइल पर तशद्दुद कर करके उनसे काम कराया, और उन्होंने उनसे सख्त मेहनत से गारा और ईंट बनवा बनवा कर और खेत में हर किस्म की खिदमत ले लेकर उनकी जिंदगी तल्ख की। उनकी सब खिदमतें जो वो उनसे कराते थे तशद्दुद की थी। तो इस तरह उन्होंने उनसे धूप और गर्मी का काम, उनसे खेतों में काम कराया, वो भी धूप में ही काम था। जो उन्होंने उनसे ईंटें बनवाई, तो ईंटें भी धूप में ही बनाई जाती हैं, फिर उनको धूप से ही उठाया जाता है, उनको पलटाया जाता है। ये सारे काम उन्होंने धूप में रह रहकर किए। तो इसी तरफ शुलमीत का इशारा है कि मेरे माँ के बेटों यानी दीगर अकवाम ने, हवा की दीगर औलाद जो इब्रानियों के अलावा थे, उन्होंने हमसे सख्त मुशक्क़तें कराई और धूप और गर्मी में हमसे काम कराए, हमसे खिदमतें ली। तो अहले बाबल भी जब उनको असीर करके ले गए, तो उनसे बाबल शहर के गिरदा गिर्द नहर किबार खुदवाई, दरियाए फरात से पानी खींच कर शहर को सप्लाई करने के लिए उस नहर के जरिए उसे देना था। और उस शहर का, बाबल के शहर का उस वक्त साइज 25 बाई 25 मील था, यानी 600 मुरब्बा मील उसका रकबा था।
25 मील एक तरफ, 25 इस तरफ, 25 इस तरफ और 25 इस तरफ, 25-25 मील का। तो आप अंदाजा कर लें 100 मील लंबी नहर उनसे उन्होंने खुदवाई और उनसे ईंटें बनवाई। तो जैसे पहले भी मैंने अर्ज किया कि ये ईंटें बनाने और खेतों में काम करने का काम जो था, ये धूप ही का काम था। यही वो धूप थी जिसकी तरफ शुलमीत ने इशारा किया, और ये धूप का काम तो गोरों को भी काला कर देता है। तो ये अफ्रीकी जो लोग हैं, ये बेचारे किस तरह काले हो गए हैं जी? आदम तो काले ना थे, तो उनकी औलाद का एक इतना बड़ा हिस्सा किस तरह काले रंग का? तो ये इलाके और मौसम के असरात है। जो लोग ठंडे मुल्कों में चले गए, शिमाल की तरफ चले गए, और जो मगरिब की तरफ चले गए, यूरोप में, अमेरिका में, वो लोग गोरे हो गए। अब उन अफ्रीकी लोगों को आप देख लें जो अमेरिका में और दीगर यूरोपीय ममालिक में आकर बस गए हैं, तो अब उनकी रंगत भी चेंज होने लग गई है और उनके शक्लो सूरत में भी तब्दीलियां आ गई हैं। तो अफ्रीका में जाकर जो वहाँ सख्त हालात, जंगलों में रहे, गारों में रहे, पहाड़ों में रहे, बियाबानों में रहे, तो वहाँ के सख्त मौसमी असरात की वजह से ही उनकी रंगतें जलकर काली हुई। तो इसी तरह यही बात जो थी वो शुलमी, हालांकि यहूदी लोग काले नहीं हैं, लेकिन वो जो कुछ वहाँ बयान कर रही थी कि मुझे जो दूसरी कौमों के दरमियान हकीर समझा जाता था, काले रंग को हकीर समझते हैं ना जी लोग, तो ये इशारा था। दरअसल तो यहूदी काले नहीं थे, वो तो बहुत ज्यादा खूबसूरत, बल्कि दुनिया के सबसे खूबसूरत लोग थे और हैं, लेकिन ये जो स्याह फाम होने की तरफ उसका इशारा था, ये वो तहकीर थी, वो तहकीर की सोच थी जो दूसरी कौमों की उनकी तरफ थी, कि लोग उनको एक छोटी कौम, एक हकीर और एक कमजोर कौम समझते थे। तो चूंकि हम इससे पहले के पैगामात में सीख चुके हैं कि शूलमीत कोई लड़की नहीं थी, मैं पहले भी ये अल्फाज मैंने दोहराए, बल्कि दर हकीकत सलामती की फरजंद कौम बनी इसराइल है। पस गजलात एक बाब की 5वीं और 6ठी आयात बनी इसराइल के उन तमाम मसाइब को बयान कर रही हैं जो उन्होंने आराम की सरजमीन और आज़ादी की जिंदगी और खुदा की मिरास पाने से पहले सहे, जिनका अभी मैंने बहुत तफसील से इससे पहले के अल्फाज में भी जिक्र किया है। तो हमारे लिए भी ऐसा ही होगा। निजात की मिरास पाने से पहले हमें हर तरह की मुसीबतें झेलना होंगी। अब आगे बात जी 5वीं आयत में जो वो कह रही है कि मैं खूबसूरत हूं। किस तरह, कितनी खूबसूरत हूं? किदार के खैमों और सुलेमान के पर्दों की तरह। तो ये किदार के खैमे जरा हम समझेंगे, किदार के खैमों से क्या मुराद है। किदार इब्राहिम के बेटे इस्माइल का बेटा था। तो चूंकि बनी इस्माइल सहराए अरब में आबाद हो गए थे, इसलिए वो रेगिस्तानों में खैमे लगाकर रहते थे। इसलिए इसराइली कौम की खूबसूरती का मुआजना यहां उन खैमों के साथ किया जा रहा है जो वीरान और गैर आबाद रेगिस्तानों में लगे हुए हों, जो मौत और वीरानी के बीच जिंदगी के आसार की अलामत हों। तो खैमा, आसान लफ्जों में ये कह लूंगा, खैमा जो है वो रेगिस्तान, बियाबान में, धूप गर्मी में इंसानों को जिंदगी की सहूलत फराहम करता है। तो वो वहां किसी के जिंदा होने का निशान था, उन रेगिस्तानों में जहां पर कोई चीज जिंदा रह ना सकती थी। तो मतलब यह कि जिस तरह अरब के वीरान रेगिस्तानों में बनी इस्माइल जिंदगी का सबूत और खूबसूरती का निशान थे, इसी तरह दीगर अकवाम के बीच जो खुदा से दूर और हलाकत की वारिस थी, इसराइली कौम जिंदगी की वारिस और खुदा के इंसान के साथ राबते और ताल्लुक की अलामत थी, क्योंकि खुदा ने अपनी शरीयत और अपना कलाम सबसे पहले उन ही को दिया था, और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी और हुस्न था उस कौम का। दूसरी बात जो उसने कही कि मेरी खूबसूरती सुलेमान के पर्दों की मानद है। तो सुलेमान के मालो दौलत का अंदाजा, जितना सोना एक बरस में सुलेमान के पास आता था, सलातीन की किताब में लिखा है, उसका वजन
सोने का 666 किंतार था। 666 किंतार सोना सुलेमान बादशाह की हुकूमत के दौर में बाहर से खरीदा जाता था, जो मुल्क के अंदर आता था। एक किंतार 33 किलोग्राम, 33 किलोग्राम के बराबर है। अब आप अंदाजा करें कि 666 किंतार कितने किलोग्राम, कितने मन हो गए। अलावा इसके व्यापारियों और सौदागरों की तिजारत और मिली जुली कौमों के सब सलातीन और मुल्क के सूबेदारों की तरफ से भी सोना आता था। और सुलेमान बादशाह ने सोना घड़कर 200 ढालें बनाई, जो अपने दरबारियों को थमाने के लिए दरबारी जो वो ढालें पकड़कर रखते थे, वो 200 ढालें बनाई सोने की। 600 मिसकाल सोना एक एक ढाल में लगा। तो एक मिसकाल कितनी है जी? एक मिसकाल 11.5 ग्राम यानी तकरीबन 1 तोला सोने के वजन के बराबर। तो उसने घड़े हुए सोने की 300 सिपरें बनाई। एक एक सिपर में 1.5 सेर सोना लगा और बादशाह ने उनको लुबनानी बन के घर में रखा। मासवा इनके बादशाह ने हाथी दांत का एक बड़ा तख्त बनवाया और उस पर सबसे चोखा सोना मंढा। उस तख्त में 6 सीढ़ियां थीं और तख्त के ऊपर का हिस्सा पीछे से गोल था और बैठने की जगह की दोनों तरफ टेकें थीं और टेकों के पास 2 शेर खड़े थे और उन 6 सीढ़ियों के इधर और उधर 12 शेर खड़े थे। किसी सल्तनत में ऐसा कभी नहीं बना। और सुलेमान बादशाह के पीने के सब बर्तन सोने के थे और लुबनानी बन के घर में भी सब बर्तन खालिस सोने के थे, चांदी का एक भी ना था, क्योंकि सुलेमान के अय्याम में इसकी कुछ कदर ना थी। क्योंकि बादशाह के पास समुंदर में हिराम के बेड़े के साथ एक तरसीसी बेड़ा भी आता था। यह तरसीसी बेड़ा 3 बरस में एक बार आता था और सोना और चांदी और हाथी दांत और बंदर और मोर लाता था। सो सुलेमान बादशाह दौलत और हिकमत में जमीन के सब बादशाहों पर सबकत ले गया और सारा जहान सुलेमान के दीदार का तालिब था, ताकि उसकी हिकमत को जो खुदा ने उसके दिल में डाली थी सुने। और उनमें से हर एक आदमी चांदी के बर्तन और सोने के बर्तन और कपड़े और हथियार और मसाले और घोड़े और खच्चर हदिये के तौर पर अपने हिस्से के मुवाफिक लाता था। और सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए। उसके पास 1400 रथ और 12,000 सवार थे, जिनको उसने रथों के शहरों में और बादशाह के साथ यरूशलेम में रखा। और बादशाह ने यरूशलेम में इफरात की वजह से चांदी को तो ऐसा कर दिया जैसे पत्थर, और देवदारों को ऐसा जैसे नशेब के मुल्क के गुलर के दरख्त होते हैं। और जो घोड़े सुलेमान के पास थे वो मिस्र से मंगाए गए थे और बादशाह के सौदागर एक एक झुंड की कीमत लगाकर उनके झुंड के झुंड लिया करते थे। और एक रथ चांदी की 600 मिसकाल में आता और मिस्र से रवाना होता और घोड़ा 150 मिसकाल में आता था। और ऐसे ही हित्तियों के सब बादशाहों और अरामी बादशाहों के लिए वो इनको उन्हीं के जरिए से मंगवाते थे। ये था जी दौलत की रेल पेल का मंजर सुलेमान बादशाह के दौर में। इसीलिए मैं कह रहा था सुलेमान का दौर बनी इसराइल के लिए सबसे आलीशान बनी इसराइल की कौम का दौर था, दौलत के लिहाज से भी सरफराज और बादशाहत के लिहाज से भी। क्योंकि सुलेमान के 40 साल दौर में इर्द गिर्द की तमाम ममलकतें उनके मातहत हो गई थी। वो मतलब के खित्ते की एक सुपर पावर बन गई थी। तो यहां इस सारे कलाम के हिस्से की तलावत से ये समझ आई कि जब सुलेमान बादशाह दुनिया का अमीर तरीन बादशाह बन गया था और उसके खाने पीने के बर्तन भी सोने के थे, तख्त हाथी दांत का था, दरबार में खड़े होने वाले दरबानों की ढालें सोने की थी, तो फिर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके महल के पर्दे किस कदर कीमती और खूबसूरत और दिलनशीन होंगे। तो उनकी मिसाल शूरमीत ने कहा कि मेरी खूबसूरती सुलेमान के महल के पर्दों की मानद है। तो फिर गजलात की
اس آیت میں جو یہ کہا گیا کہ وہ دوشیزہ یعنی خدا کی قوم سلیمان کے گھر کے پردوں کی مانند خوبصورت ہے، وہ دنیا کی تمام اقوام میں ایسی ہی خوبصورت اور عالی مقام تھی۔ بحیثیت قوم وہ دنیا میں سب سے پھر خوبصورت قوم بن گئی تھی۔ خدا نے اس کی مشقتوں کو آسائشوں میں اور تنگ دستیوں کو فراوانی میں بدل دیا تھا۔ کہاں اس کے آباء و اجداد خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے، لیکن اب خدا نے ان کو دنیا کی اعلیٰ ترین مملکت بنا دیا تھا۔ خدا اپنے ساتھ چلنے والوں کو اب بھی ایسے ہی انعام دے گا۔ اب خدا کے ساتھ چلنے والوں کا انعام وہ زمینی یروشلم نہیں بلکہ آسمانی یروشلم ہوگا، جو ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں بلکہ قادر مطلق خدا کا بنایا ہوا ہوگا، جس کی سڑکیں بھی سونے کی ہوں گی، دروازے قیمتی موتیوں کے ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔